Yes, sir. Good morning, everyone. How are you all? I am Good fine. morning. Hello, sir. I am fine. I am fine. I'm also fine. But in this class, we are going to study English subject. Actually, Rahul sir is on leave today. So today I will be taking the session और इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है. So मैथ्स की जगह पे today we will be studying English subject. Okay. Already I have sent message. Yes, sir. Yes, this sir. morning that whether English or maths, it is not confirmed that which class would be running. Now we have decided that the English should be run in the place of maths because Rahul sir will leave. So let us open the book what we were studying. Reaction. But in our last class, we answered all questions. We discussed all questions and given answer for all the questions from book ABC. ABC सारे questions को discuss किया जा चुका है. So after this, there is a vocabulary junction. In the chapter number 7, after the get going, after the get going section, there is a vocabulary section, and in the vocabulary, we would be learning a concept where our word power would be improved. So before moving vocabulary, Yes, is there any query? sir. Is there any query from the get on section, get going section? Yes. No, sir. Yes, Shikha, do you want to ask anything? No, सर आपने बोला था कि वीडियो दे सर क्वेश्चन आंसर कर लेना सर वीडियो सर यूट्यूब पे नहीं बहुत खोजे सर नहीं क्या हुआ फिर से बोलिए. शिखर फिर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है. एक्चुअली ही इज नॉट कनेक्टेड. बेटा क्या प्रॉब्लम है आप लोग को भी कुछ समझ में आ रहा है? इज देयर एनी इशू टू कंप्लीट द राइट द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस? यस अंचित. क्या प्रॉब्लम आ रही है सर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग को वीडियोस में क्या नहीं दिख रहा है? शिखर क्या बोल रहे हैं बताइए शिखर. सर दिख रहा है सर आपने बोला था कि सर लेट अस रीड बिटवीन द लाइन वाला सर आपने बोला था कि वीडियो में देख देख के कर लेना तो सर वीडियो सर तो बहुत खोजे सर नहीं दिख रहा है. वीडियो में नहीं दिख रहा है? आपने रिकॉर्डिंग चेक किया था? सर खोज नहीं मिल रहा है. आप खोजेंगे नहीं. आपको जो ये किस दिन, ये कब हम लोगों ने डिस्कस किया था? ये बी सेक्शन या सी सेक्शन? सर बी सेक्शन आपको कल नहीं कराया गया था. कल के पहले वाले तब ये पढ़ाया गया था. वीडियो देखिए ना. अभी आप सर आपको लिंक भेज दूंगा, चेक करके मैं लिंक भेज दूंगा. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो उसके बाद आई विल बी सेंडिंग. यस सर आप करिए व्हाट्सएप पे. हाँ सर आपके व्हाट्सएप पे. चलिए ठीक है. अभी आज हम लोग वोकैबुलरी जंक्शन को शुरू करते हैं. In the vocabulary section, let us start something new. Let us try out something new today. Let us try out something new today. You all have to carefully, बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, because इसी से ही आपका vocabulary junction शुरू हो जाएगा. Let us try out something new today. Let us try out something new today. You have to put on your thinking caps and answer my question. You have to put on your thinking caps and answer my question. You have to put on your thinking caps. You have to put on your thinking caps and answer my question. And finally, you will find out the correct answer. And finally, you will find out the correct answer. बेटा जो सेंटेंसेस हमने बोले हैं उन्हीं में से कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं जिसका मीनिंग आपसे मैं पूछूंगा. पहले मैं लिखता हूं. ट्राई आउट, पुट ऑन,
So what do you mean by try out? Who can speak? Who can tell the meaning of try out? मैंने बोला था let us try out something new today. Who can tell the meaning of try out? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, let us try out something new today. इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कौन बता सकता है? Let us try out something new today. अंचित बताइए. चलो हम कुछ आज नया सीखते हैं। चलो आज हम कुछ नया सीखते हैं. सीखने का इंग्लिश ट्राई करना होता है. ट्राई में तो कोशिश होता है. सीखने की इंग्लिश क्या होती है? इसको मुझे यहाँ पे मैंने गलत बोला क्या? लेट अस लर्न टुडे, लेट अस लर्न समथिंग न्यू टुडे, ऐसे बोलना था क्या? ये लेट अस ट्राई, ये भी सही है. निश्चित आप यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा बफरिंग है, मतलब कुछ आप इसको म्यूट करके फिर से अनम्यूट करके फिर आप म्यूट. और प्लीज आप फोन मत छेड़िए. फोन छेड़ते हैं तभी आवाज आती है. फोन एक जगह रख करके क्लास लिया करिए. मैंने पूछा बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें या तो मैं आगे सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाऊंगा. फिर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो मैं भी सीधा एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा, कंप्लीट कर दूंगा अभी तुरंत. मैं कुछ पूछ रहा हूं. पहली बार मैंने बोला है लेट अस ट्राई आउट समथिंग न्यू टुडे. तो अंचित ने मैंने पूछा ट्राई आउट का मतलब क्या हुआ, तो अंचित ने बोला चलो सीखना, मतलब चलो हम आज कुछ नया सीखते हैं. तो ट्राई आउट सीखने की इंग्लिश जो होती है हम लोगों ने जो पढ़ा है लर्न. तो क्या मुझे लेट अस ट्राई आउट समथिंग न्यू टुडे के जगह पे लेट अस लर्न समथिंग न्यू टुडे बोलना था? अभी मैं पूछ रहा हूं, अभी कई सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं जवाब दे रहे हैं. जिसको भी आता है तुरंत आंसर करिए. शिवांगी बोलिए. कोशिश करना। ट्राई आउट मतलब कोशिश करना. शिवांगी ने बताया ट्राई आउट मीन्स कोशिश करना. अंचित ने बताया सीखना. यशवर्धन चलो आज हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। यानी ट्राई आउट मतलब आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, यानी करना. यानी चलो हम कुछ करते हैं, कुछ करने के लिए बताया जा रहा है. ट्राई आउट मतलब कुछ करने के लिए. ये यशवर्धन ने बताया. शिवांगी त्रिपाठी ने बताया ट्राई आउट का मतलब सीखना, चलो हम कुछ नया सीखते हैं. और अंचित ने बताया चलो आज हम नहीं, अंचित ने बताया था सीखना, और शिवांगी ने बताया था चलो हम कोशिश करते हैं. 3 मीनिंग इसकी आ चुकी है. इसके अलावा भी और कोई मीनिंग कोई बताना चाहेगा? मे आई टेल जितनी. चलो आज हम कुछ नया सीखने का, चलो हम आज कुछ नया सीखने का कोशिश करें. इसका मीनिंग फिलहाल ट्राई आउट का आप लोगों ने बता दिया. इसका सही मीनिंग क्या है मैं भी बता दूंगा. अब पुट ऑन की बात करते हैं. मैंने बोला था आई हैव रेड ए सेंटेंस, यू हैव टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स. चलो मैं एक थोड़ा सा इजी वर्ड्स ले लेता हूं. आप लोग स्लीपर पहनते हैं? चलो अगर ये मैं बोल दूंगा तो फिलहाल चलो अच्छा ठीक है, इजी ही कर दें. आप अपने शूज निकालने के लिए, आप किसी को शूज निकालना हो, आप ये कहना हो कि अपने शूज निकालिए, अपने शूज निकालिए को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आउट योर नेम। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए. सर आउट यू पुट आउट योर पुट आउट नहीं, पुट ऑफ होगा. ऑन का ऑफ होता है. पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑन योर स्लीपर. आप चप्पल पहनिए तो क्या बोलेंगे? वियर योर स्लीपर. चप्पल को पहना जाता है. Yes. चप्पल को पहनते ही तो हैं. यस सर। यस सर। चप्पल यू पुट ऑन तो बोलना हो कि स्लीपर। मुझे चप्पल पहनने दीजिए, मुझे स्लीपर पहनने दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी वियर स्लीपर. मुझे स्लीपर वियर करने दें, क्या ऐसा बोलेंगे? नो, इट्स रॉन्ग. लेट मी पुट ऑन स्लीपर। लेट मी पुट ऑन स्लीपर. मुझे स्लीपर पहनने दीजिए. लेट मी पुट ऑफ योर शूज. प्लीज पुट ऑफ योर, कैन यू पुट ऑफ योर शूज? कृपया क्या आप शूज बाहर निकाल सकते हैं? कैन यू पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड ऑफ द डोर? क्या आप दरवाजे के बाहर अपने शूज निकाल सकते हैं? कहने का मतलब ये है
ट्राई मीन्स तो होता है कोशिश करना, आउट मीन्स होता है आउट कर देना, बाहर कर देना। पुट मीन्स होता है रखना, ऑन मतलब किसी पर्टिकुलर किसी पुट ऑन, जैसे पुट ऑन का मतलब ऊपर रखने का सेंस नहीं आ रहा है, पुट ऑन का मतलब क्या, पहनना होता है। ट्राई आउट का मतलब जो होता है आज हम कुछ नया करते हैं, नया करना, नया करना, कोशिश करना, ट्राई समथिंग न्यू। अगर ऐसा बोला जाता लेट अस ट्राई समथिंग न्यू, तो चलो हम आज नया कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई आउट समथिंग न्यू, ट्राई आउट अगर बोल दिया जाए तो कुछ हम नया करते हैं। समझ में आया? यस सर। अब ये यस सर। ट्राई मीन्स होता क्या है? ट्राई मीन्स होता है कोशिश। ट्राई कोशिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी को पढ़ाया गया है। यस सर। यस। तो ये ट्राई मीन्स होता है एक तरीके से कोशिश करना। ट्राई जो वर्ड है वो कौन सा, किस टाइप का वर्ड है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन वर्ड है, क्या है? प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? ओनली द टाइम। आपके पास अपना माइक प्लीज बंद रखिए, आ रहा है। या तो आप कनेक्टेड नहीं है या तो आप निकाल के दोबारा। आपको जब बोलना होगा तो माइक ऑन करिएगा, तुरंत ही फिर से बंद कर लीजिएगा। तो ट्राई आपका क्या है, किस तरह का? बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया है कि नहीं? आपने इसके पहले वाली क्लासेस में तो पढ़ाया गया। पढ़ाया गया है। लिख दूं या लखनऊ लिख दूं तो लखनऊ क्या है? नाउन। तो आपको तुरंत उसी तरह ट्राई किस तरह का वर्ड है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। वर्ब। इट्स अ वर्ब, इट्स नॉट एडजेक्टिव। वर्ब। ये वर्ब है, काम मतलब कोशिश करना, कोशिश करना एक काम है, क्रिया है, एक क्रिया है, क्रिया है। तो इट्स अ वर्ब। और पुट किस तरह का वर्ड है? वर्ब। पुट इज ऑल्सो वर्ब। वर्ब है, लेकिन आउट क्या है? आउट क्या है? OUT, आउट, आउट या ऑन। प्रीपोजिशन। इट्स अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है, कई बार अगर मैं यहां पे सिर्फ ट्राई लिखा होता, लेट मी राइट, मैं पूछता ये ट्राई मीन्स क्या हुआ, तो आप कहते कोशिश करना। मैं पूछता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई, तो आप कहते कोशिश करना। और मैंने पूछ लिया ट्राई आउट, ये ट्राई आउट मीन्स क्या, तो आपने बोला कि कुछ नया करना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं पुट लिखा होता अलग से तो पूछता पुट मीन्स क्या होता है, तो आप कहते पुट मीन्स क्या होता है? रखना। रखना। लेकिन जब मैंने पूछा पुट ऑन मीन्स क्या होता है, तो आपने बोला पहनना। मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं? हो गया। कई बार वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन वर्ड आकर के उस वर्ड की मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। कई बार कुछ वर्ब प्रीपोजिशन वर्ड के साथ आते हैं, कुछ वर्ब वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड के साथ आते हैं और जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ऐसे वर्ब आपके क्या कहलाते हैं? Here the word एक्शन वर्ब किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ब बोलो चाहे एक्शन वर्ब बोलो, बात तो एक ही है ना। यस सर। वर्ड, ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन वर्ड, कुछ भी बोले, वर्ब बोले या एक्शन वर्ड बोले, एक्शन वर्ड जब आपका प्रीपोजिशन के साथ आए और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? Whenever a verb comes along with a preposition word, जब वर्ब और प्रीपोजिशन का एक साथ मिलके आए और इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो दैट इज अ फ्रेजल वर्ब्स। अब आपके बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। अभी तो जो मुझे समझाना था
समझा दिया हूँ, आई होप सभी को समझ में आ भी गया होगा थोड़ा बहुत। यस सर। Yes, sir. सर Now read this sentence. As luck would have it, the next day he came across a girl with a cat. He came across a girl with a cat. He came across. Came across means क्या होता है? Came means क्या होता है? अब इसको केम मिस भी नहीं बताएंगे तो इसका मतलब कोई बोलना ही नहीं चाहता, मैं भी जल्दी से खत्म कर दूं। अरे जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो तो बोले, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? कुछ तो नहीं बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं उनका। केम मीन्स क्या होता है? केम मीन्स क्या होता है? आना मिस आना, केम मिस आया। आना कम मिस आना, केम मिस आया। यानी आना ही आपने बोला, गलत नहीं बोला, ठीक ही है। कम मिस आना। कम किस तरीके से? वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे अक्रॉस। केम आया है, वो अक्रॉस के साथ आया है। ये अक्रॉस क्या है? अक्रॉस का मतलब क्या होता है? किस लिए यूज क्रॉस एक तरीके का कह सकते हैं प्रीपोजिशन वर्ड है। क्रॉस आपका एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज करते हैं। जैसे आर पार आपने बोला, या कई बार के लिए भी यूज किया जाता है। आर पार आप समझते हैं, आर पार समझिए। तो अक्रॉस में आर पार, केम मतलब वर्ब। तो अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? ही केम अक्रॉस अ गर्ल, वो एक केम, वह आया, आर पार अ गर्ल विद अ कैट, वह आया अक्रॉस यानी आर पार अ गर्ल विद अ कैट। क्या ऐसे मीनिंग निकलेगा? क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या बताया गया था? ही केम अक्रॉस अ गर्ल विद अ कैट। जब आपको स्टोरी पढ़ाया गया था तो इसका मतलब क्या बताया गया था? इस सेंटेंस का मतलब, ही केम अक्रॉस अ गर्ल विद अ कैट। नहीं समझ में आ रहा है? केम अक्रॉस नो सर। बाय चांस, मिलना। केम अक्रॉस मतलब मिलना हो जाता है। मैंने कहा ना, जब वर्ब प्रीपोजिशन वर्ड के साथ आता है, सारे वर्ब नहीं, कुछ वर्ब प्रीपोजिशन वर्ड के साथ आपका एज ए वर्ब काम करे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। केम अक्रॉस मतलब मिलना, टू मीट समवन बाय चांस, अचानक से मिलना है, बाय चांस मिलना, ठीक है। ही केम अक्रॉस बाय चांस, he met a girl with a cat। came across की जगह पे आप ऐसे लिख सकते थे, बाय चांस he came across a girl, he met a girl with a cat। ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, मीट नहीं मेट होगा। जैसे कम नहीं केम है तो उसी तरह मीट नहीं मेट होगा। तो he met a girl with a cat यानी वो एक ऐसे लड़की से मिला, यानी बिल्ली के साथ, एक जिसके पास बिल्ली थी, ऐसी लड़की से मिला जिसके पास बिल्ली थी। तो केम अक्रॉस मीनिंग क्या निकला? केम अक्रॉस मीन्स क्या बताया गया? क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? मिलना। Now look into this section. Here the words came across is made up of a verb and a preposition। जो वही बात जो मैंने आपको बताया, जो came across है, ये वर्ड आपका किससे बना हुआ है? The words came across is made up of a verb and a preposition। एक वर्ब और एक preposition से मिलकर के बना है। बना है कि नहीं? बना ये कौन बना है? इतना लंबा बोलने की जरूरत क्या है? आप ऐसे बात किया जाता है, मतलब what you are doing? Making fun, I think, but not studying। अपनी आवाज जताने के लिए इस तरीके से नहीं किया जाता। But together these words have a different meaning। देखो ध्यान से सुनिए। Here the words came across is made up of a verb and a preposition, जिसके अलग अलग है, आप ही लोगों ने मीनिंग बताया। But together means एक साथ। But together these words have a different meaning। एक साथ ये दोनों वर्ड्स हैं, वो डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। तो डिफरेंट मीनिंग क्या मीनिंग है? It means to meet something, it means to meet someone by chance। इसका मतलब यह है कि किसी से बाय चांस मिलना। Such words made up of a verb and a preposition
अब आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है। अभी तो आपको ये बताया गया कि केम अक्रॉस दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, एक वर्ब है एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका जो मीनिंग है इज ये डिफरेंट। जब ये दोनों वर्ब और प्रीपोजिशन एक साथ आते हैं और इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या बताया, सच वर्ड्स मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द, सच वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द, सच वर्ड्स ऐसे शब्द, मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ड्स ऐसे शब्दों के समूह को एक तरीके से कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स दैट इज मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन, जो कि वर्ब एंड प्रीपोजिशन के मिलने से बने होते हैं, एंड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। उनकी स्पेशल मीनिंग होगी, मीनिंग नॉर्मल मीनिंग नहीं होगी जो केम मिस आना होगा और पुट मिस रखना होगा, उनका स्पेशल मीनिंग होगा। केम अक्रॉस मतलब मिलना, पुट ऑन मतलब पहनना। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. So in this section we are Yes, going to read some of the phrasal verbs जिनकी मीनिंग आप सभी को ध्यान रखनी है। जब कभी भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो उसकी मीनिंग उसी तरीके से निकालना भी है। ओके? Yes, sir. तो phrasal Yes, verbs sir. क्या है? समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फ्रेजल वर्ब होने के कंडीशंस क्या क्या हैं? कौन बताएगा? Who can tell the conditions of phrasal verb? फ्रेजल वर्ब्स किसे कहेंगे? What are phrasal verbs? गौरव पासवान बताइए। सर सच वर्ड मेड ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन गलत बात, बिल्कुल। ये किताब दे करके इसको पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है। आई नीड आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। आप बताइए आप क्या समझे? व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? आप समझाइए लोगों को, आपको क्या समझ में आया? किताब देखे रट्टा नहीं मारना, उसका वो किताबी लैंग्वेज में नहीं, अपने लैंग्वेज में बताइए, हिंदी में बताइए, छोड़िए इंग्लिश में नहीं, मुझे हिंदी में जानना है। आस्था मौर्य आप बताइए। जो वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाकर बनते हैं और उनका अर्थ भी एक स्पेशल निकलता है, उन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। शिवांगी त्रिपाठी, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी में एक हो गया, अब इंग्लिश में। किताब वाला नहीं। जो शब्द वर्ब और प्रीपोजिशंस को मिलाकर एक विशेष अर्थ निकालते हैं उन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। ऐसे वर्ब, चलो ठीक है। नाउ हु कैन स्पीक इन इंग्लिश? हु कैन टेल अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश में ट्राई कर सकता है, गलत सही होगा देखा जाएगा, गलत होगा तो मैं बताऊंगा ना सही करने के लिए। मैंने तो सुन सर रेजिंग दिया है कि मान्या गलत क्या, पहले तुम जान जाओगी, पहले बोलो तो सही, गलत तो बताऊंगा। माइक ऑन करिए मान्या। हाँ शिवांगी बताइए। वर्ड्स शिखर बोलिए। Any word mixed verb and preposition, his special means are called ये हिज किसके लिए लगा रहे हो? आपको कैसे पता ये लड़का है? चलिए आस्था मौर्य आप बताइए। Word that made up of verb and preposition and have। अरे देख के बता दीजिए, देख तो रही है चोरी चोरी। चलिए ठीक है। वर्ब सर नहीं देख रहा है। वर्ड्स मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। फिलहाल सभी को आ गया, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस किया है, समझ में तो आ ही गया है। वर्ड्स दैट इज मेड अप ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, जो वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर के ऐसे वर्ड्स बने हो, ऐसे वर्ब बने हो।
that have a special meaning, जिसकी अलग मीनिंग निकले, that is called a phrasal verbs. अब नाम मत भूल जाना, phrasal verbs. फिलहाल भूलेंगे नहीं क्योंकि put मीन्स रखना, on मीन्स ऊपर, लेकिन put on मतलब पहनना. दोबारा वो गलती नहीं करेंगे आप सभी, मुझे पता है. वो भी स्लीपर का जब एग्जांपल दे दिया तो चप्पल पहनना तो सभी को, चप्पल तो सबको सभी पहनते हैं, तो भूलेंगे तो नहीं आप सभी. So बेटा, let us read some phrasal verbs. Let us read some common phrasal verbs and their meaning. अभी कुछ common phrasal verbs यहाँ पे दिए हैं आपके इस टेबल में. Okay? How many phrasal verbs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 है क्या? तो 14 phrasal verbs are there. इन 14 phrasal verbs के meaning को जानते हैं और उसका example भी देख सकते हैं. उसको यूज करना. There was a network issue, something, I think. चलिए ठीक है, अभी I hope. I was telling that today, now we have to study some of the phrasal verbs. Some of the phrasal verbs that is having the different meaning and their uses. ऐसे phrasal verb और उनकी meaning को पढ़ेंगे, learn करेंगे. पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद learn भी रखेंगे, learn भी करेंगे और ध्यान रखेंगे हमेशा. जब ध्यान रखेंगे तभी आप उसका मीनिंग आने वाला, जब कभी भी आपके फ्यूचर में कोई बुक्स पढ़ें या कभी आपको बोलना हो, आप फ्रेजल वर्ब यूज करके आप कुछ किसी को बोल दीजिए, कोई जान ही नहीं पाएगा. अगर उसकी मीनिंग समझता होगा तभी वो समझ पाएगा ना. तो दीज आर द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. यस सर. तो इंग्लिश बोलना सीखो. लोगों हमने यूज भी करें. सो लेट अस रीड सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब. पहला फ्रेजल वर्ब आपका है डू ओवर. क्या है? डू ओवर. डू आपका दिया है. ओवर आपका प्रीपोजिशन है. डू इज अ वर्ब बट ओवर इज अ प्रीपोजिशन. लेकिन डू मिस होता है करना, ओवर मतलब आप प्रीपोजिशन. लेकिन whenever do over comes together, जब कभी भी जो do over है ये दोनों साथ में आते हैं, तब क्या होता है? What is the meaning of do over? Repeat a job or a task. That means मैंने आप लोगों ने गलत किया. एग्जाम्पल में देखते हैं. Your homework will have to be done over. Homework will have to be done over. आपको होमवर्क दोबारा किया गया होगा. बुक नहीं दिख रही है. आपको नेटवर्क इशू आपके यहाँ पे है, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द बुक्स. और कई बार आपका पिक्चर में मुझे नहीं दिखता. बाकी बच्चों को दिख रहा है प्रॉपर बुक्स? एम आई ऑडिबल? वेदर द यस सर. विजिबल? यस सर. यस सर. यस सर. तो डू ओवर का मतलब कहीं ना कहीं जो मीनिंग है यहाँ पे जो आ रहा है, डू ओवर का मतलब किसी भी काम को दोबारा करना, यानी रिपीट करने की. जब कोई किसी भी कार्य को रिपीट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कह सकते हैं? रिपीट योर टास्क. आप अपने काम को दोबारा करिए, या डू ओवर योर टास्क. डू ओवर योर टास्क. तो डू ओवर मतलब क्या होगा? Repeat a job or a task. दोबारा करना. मुस्कान प्रजापति, बेटा रोटेट योर स्क्रीन प्लीज. रोटेट योर फोन इन द हॉरिजॉन्टल व्यू. आई डू नॉट वांट टू टेल यू डू ओवर. आपको दोबारा नहीं होगा. फिल आउट. द सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज द फिल आउट. फिल मींस भरना होता है, फिल आउट मींस कंप्लीट अ फॉर्म. कई बार आप लोगों ने जब कोई फॉर्म भरना होता है तो आप मतलब ये रहता है कंप्लीट अ फॉर्म एंड सबमिट इन द ऑफिस. कंप्लीट दिस फॉर्म एंड सबमिट इन द ऑफिस. तो कंप्लीट दिस फॉर्म के बजाय कई बार लिखा था फिल आउट दिस फॉर्म एंड सबमिट इन द ऑफिस, सबमिट टू योर टीचर. फिल आउट दिस एक्टिव, फिल आउट दिस फॉर्म. तो किसी भी चीज को यानी पूरा करना. फिल मतलब भरना होता है, लेकिन फिल आउट मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना. फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म. तो कंप्लीट अ फॉर्म के बजाय आप फिल आउट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. फिल आउट मीन्स अब फिल आउट दोनों एक साथ आ रहे हैं, दैट इज हैविंग द डिफरेंट मीनिंग, स्पेशल मीनिंग है. फिल आउट मीन्स क्या होता है? भरना.
करना। Fill होता है भरना, फॉर्म को भरा नहीं जाता है, पूरा किया जाता है। समझ में आया? यस सर। बॉक्सेस सर बॉक्स के अंदर यस सर। फिल इन द बॉक्सेस होता है, बॉक्स के अंदर भरिए। क्या भरिए? आपको जो भी बताया जाए वो भरिए। लेकिन फिल आउट यानी पूरा करना, उसमें कुछ ऑलरेडी है उसी को आपको पूरा करना है, जो कम है जो अधूरा है उसी को पूरा करना है। तो फिल मीन्स अधूरा, पूरा करना और भरना दोनों अलग अलग चीज है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल आउट द ब्लैंक्स होना चाहिए ना, कि फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए? सर फिल इन द ब्लैंक। fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स। फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स लिखा जाता है, उस ब्लैंक्स में आपको भरना होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको पूरा करना होता है ना। तो फिल आउट द ब्लैंक्स भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप यस सर। गलत मत मानिएगा ना। फिल अप, अब फिल आउट में से यहीं पे आप देख रहे हैं फॉर्म, इसका मीनिंग हो रहा है, बट फिल अप मीन्स फिल टू द कैपेसिटी, फिल टू कैपेसिटी। शी फिल्ड अप द बास्केट एंड विद वेजिटेबल्स। शी फिल्ड अप द बास्केट विद द वेजिटेबल्स, यानी जो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भरना। अब जब कैपेसिटी से रिलेशन आ गया तो यहाँ पे क्या, शी फिल्ड अप द बास्केट विद द वेजिटेबल्स, उसने अपना जो बाल्टी है वो भर लिया, उसकी जो कैपेसिटी थी वो भर दिया वेजिटेबल से। फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब डिस्कवर, खोजना। डिस्कवर। लेट अस फाइंड आउट सम न्यू थिंग। चलो आज हम कुछ नया खोजते हैं। लेट अस फाइंड आउट something new. My brother found out that we were planning a surprise birthday party for him. My brother found out, मेरे भाई ने पाया that we were planning a surprise birthday party for him. उन्होंने हमें पाया कहीं नहीं, उन्होंने मुझे खोजा, पाया। Find out means came in, to become available, came in, sorry, come in का means होगा to become available, यानी उपलब्ध होना, प्रेजेंट होना, टू बी प्रेजेंट, टू बिकम अवेलेबल। द एग्जाम्पल फॉर दिस फ्रेजल वर्ब इज वी आर वेटिंग फॉर द न्यू स्टोरी बुक्स टू कम इन। वी आर वेटिंग फॉर द न्यू स्टोरी बुक्स टू बिकम अवेलेबल। हम कोई नया स्टोरी बुक्स जो भी जल्दी से अवेलेबल हो, ऐसी स्टोरी बुक्स का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं किसका? फॉर द न्यू बुक्स टू बिकम अवेलेबल, एक नई किताब जो जल्दी ही अवेलेबल हो। टू द न्यू स्टोरी बुक्स टू कम इन, यानी जो अवेलेबल हो, जो प्रेजेंट हो। इसी तरह कम इन का टू विजिट, लुक ओवर का एग्जामाइन और चेक। लुक ओवर का कहते हैं ना, लुक ओवर में लुक मिस होता है, देखना। तो ये देखना मतलब नहीं, लुक कहा जाता है ना, द स्टूडेंट्स लुक्ड ओवर द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग द आंसर। The students looked over the question. Students ने क्या किया? क्वेश्चन को ध्यान से देखा, एग्जामाइन किया, चेक किया, बिफोर राइटिंग द आंसर, आंसर लिखने के पहले। तो लुक ओवर मतलब ध्यान से देख लिया। जैसे आप लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, कई लोग ध्यान से देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कई लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, स्क्रीन चल रही है, सर बोल रहे हैं। अब कहा मैं पूछ लूं कहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, कई लोग खोजने लगेंगे। कई लोग जो ध्यान से देख रहे होंगे वो बता देंगे, कुछ लोग खोजेंगे कहाँ पे पढ़ रहे हो, तो कहाँ लिखा है। तो यानी वो वैसे ही देख ही रहे हैं। तो ये लुक ओवर, वो लुक मीन्स वो होता है कि जो आप नॉर्मली देखें, लेकिन लुक ओवर मतलब ध्यान से, यानी एग्जामाइन करना, परीक्षण करना। ध्यान से मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ध्यान से देखना, वो लुक इन होता है, बट ये लुक ओवर मतलब एग्जामाइन करना, परीक्षण करना किसी चीज का। जब आप चावल में से आप घरों में बीना जाता है ना, क्या कोई गिट्टी या कंकड़, तो लुक ओवर यानी उसका परीक्षण किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कहीं है तो नहीं, कुछ चीजें अनवांटेड थिंग्स बाहर निकालते हैं। टिक आउट, अब आप लोगों में से कई सारे बच्चे हैं, तो इसमें से मुझे किसी एक बच्चे को चुनना हुआ तो क्या करेंगे? आई विल चूज समवन, मैं किसी एक को चूज करना हो, किसी एक को ही चूज करना हो तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मैंने किसी को चुना, मैंने किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए किसी को चुना, जैसे मैंने कल नहीं परसों अंचित को बोला था, अंचित आपको पीडीएफ बनाना है, बट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स। अंचित को अब चूज का जो पास्ट फॉर्म होगा क्या होगा? चूज, आई चोज अंकित फॉर द
I chose Ankit for the scan for the PDF of the chapter लेने के लिए, to get the PDF of the chapter. अब चोज के जगह पे हम पिक्ड आउट भी यूज कर सकते हैं. I picked out अंकित, मैंने अंकित को चुना. चुनने को आप चूज के जगह पे पिक आउट भी बोल सकते हैं, कई लोगों में से चुनना. समझ में आया? तो पिक में होता उठाना. अब उठा के बाहर नहीं कर देना है, तो उठा के बाहर नहीं करना है. ये मुस्कान प्रजापति के नेटवर्क और कुछ दिक्कतें हैं, वो इसका से आ जाएगी. पिक आउट, पिक में तो होता है उठाना, पिक करना. लेकिन पिक आउट मीन्स क्या होगा? चुनना, किसी को, कईयों में से किसी को चुनना. समझ में आया? यस सर. पिक आउट के बजाय पिकैड भी होता है. पिकैड भी होता है. पिकैड मीन्स क्या होता है? पिक में से उठाना. एट मतलब क्या होगा? पिकैड का मीनिंग फिर अलग हो गया, उसकी स्पेशल मीनिंग. क्या मीनिंग है? टू ईट फूड स्लोली बिकॉज यू आर नॉट हंग्री और डोंट लाइक द फूड. Picked at the Spanish rice. Spinach rice. He picked at the spinach rice. Spinach rice को अरे बहुत धीमे धीमे कोई कार्य करना, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप अनिच्छा से, जब आपका मन ना हो तो कोई धीमे धीमे खाना. Put on, put on का मतलब wear, put off मतलब निकालना. अब wear मतलब I put on a sweater and jacket. I put on a sweater and a jacket. तो स्लीपर के लिए तो आप ही कर सकते हैं, आप स्वेटर जैकेट के लिए भी. यू हैव टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स. आप अपने सोचने वाले जो टोपी है उसको पुट ऑन, उसको पहनना है, यानी रेडी हो जाओ. वहां पे भी आपका एक फ्रेजल वर्ब से एक तरीके से फ्रेज यूज किया गया था. आई पुट ऑन अ स्वेटर एंड अ जैकेट. मेनी ऑफ यू हैव पुट ऑन कैप्स. सही है ना? तो पुट ऑन का मतलब वियर होगा. तो पुट ऑन का कभी भी मतलब आए तो ऑल्सो यू हैव टू ट्राई ऑन. लेट अस ट्राई ऑन समथिंग बोला था ना. लेट अस ट्राई आउट मिलेगा. लेट अस ट्राई आउट. ट्राई आउट मतलब डू समथिंग न्यू. अब ट्राई ऑन का मतलब क्या है? ट्राई ऑन मतलब पुट क्लोथिंग ऑन द सी इफ इट इज फिट्स. शी ट्राइड ऑन 15 ड्रेसेस बिफोर द फाउंड वन शी लाइक. बेटा हम लोगों ने जो शुरुआत किया था, लेट अस ट्राई आउट मतलब कुछ नया करना, बट ट्राई ऑन का मतलब चेक करना एक तरीके से. क्या करना? लेकिन चेक करना संदर्भ में जब क्लोथ्स के संदर्भ में हो. शी ट्राइड ऑन 15 ड्रेसेस. उसने करीब 15 ड्रेसेस को चेक किया. आप लोग जाकर के कपड़े लेने के वाले चेक करते हैं ना कि कैसा लगेगा. शी पुट ऑन, शी tried on 15 dresses. उसने करीब